اسرائیلی پارلیمنٹ میں مقبوضہ مغربی کنارے کو ضم کرنے کا غیر قانونی بل منظور، سعودی عرب، قطر اور اردن کی شدید مذمت۔ اسرائیلی آباد کاری مسترد، اسرائیلی توسیع پسندانہ عزائم فلسطینیوں کے حقوق سلب کرنے کی کوشش قرار۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے فضائی حملے، مزید 4 فلسطینی شہید۔ بھوک اور پیاس سے مجبور فلسطینیوں کو امداد کی فراہمی میں مشکلات کا سامنا۔ غزہ کے علاقے دیر البلح میں 20 شہداء کی اجتماعی تدفین۔ پاکستان کی اسرائیلی جارحیت پر 2 ٹوک مذمت۔ مقبوضہ مغربی کنارے پر نام نہاد خود مختاری کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ پاکستان علاقائی بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر فلسطینی عوام کے حقوق کے تحفظ، بالخصوص ان کے حق خود ارادیت اور ان کے لیے امن، انصاف اور وقار کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کا عالمی برادری سے فوری اور مؤثر کارروائی کا مطالبہ۔ فلسطینی عوام کے ناقابل تنسیق حقوق کے تحفظ کا اعادہ۔ پولینڈ کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کی دفتر خارجہ آمد۔ محمد اسحاق ڈار نے پولینڈ کے نائب وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان دفتر خارجہ میں 1 on 1 اور وفود کی سطح پر ملاقات ہوگی۔ ملاقات میں پاکستان اور پولینڈ کے درمیان تعلقات کے تمام پہلوؤں پر بات ہوگی۔ علاقائی روابط کا فروغ اجتماعی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ حکومت ریل اور روڈ نیٹ ورکس کو ترجیحی بنیادوں پر فروغ دے رہی ہے۔ ہم اپنی بندرگاہوں کو بھی جدید خطوط پر استوار کر رہے ہیں۔ جنوبی اور وسطی ایشیا کے ساتھ تجارت کے فروغ کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان جنوبی ایشیا وسطی ایشیا کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے۔ سی پیک کے تحت روڈ منصوبے رابطوں کے حوالے سے اہم ہیں۔ رابطے تجارت ہی نہیں، اعتماد سازی کا بھی ذریعہ ہیں۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا اسلام آباد میں ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹرز کانفرنس سے خطاب۔ ذرائع آمد و رفت معاشی ترقی کے زینے ہیں۔ ٹرانسپورٹ کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ ٹرانسپورٹ کے شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کو بھی بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ پاکستان سی پیک کے ذریعے خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ روابط بڑھا رہا ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا اسلام آباد میں ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹرز کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ وفاقی وزیر علی پرویز ملک کی آسٹریلیا میں بین الاقوامی مائننگ اینڈ ریسورسز کانفرنس کے موقع پر مختلف وفود سے ملاقاتیں۔ سعودی عرب، سویڈن، فرانس، ورلڈ بینک اور پاکستانی بزنس کمیونٹی کے اراکین سے الگ الگ ملاقات۔ پاکستانی معدنیات کے شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال، باہمی تعاون اور ممکنہ سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال۔ علی پرویز ملک نے پاکستان بزنس کمیونٹی کے اراکین سے بھی ملاقات کی۔ اوورسیز پاکستانی کا پاکستان کی معیشت میں اہم کردار رہا ہے۔ علی پرویز ملک۔ 22ویں ہیلتھ ایشیا نمائش پاکستان کے صحت کے نظام میں جدت کی نئی جہد۔ SIFC کے تعاون سے 22ویں ہیلتھ ایشیا انٹرنیشنل نمائش آج سے 25 اکتوبر 2025 تک کراچی ایکسپو سینٹر میں منعقد ہو رہی ہے۔ یہ نمائش ای کامرس گیٹ وے پاکستان اور وزارت صحت کی مشترکہ کاوش ہے۔ 22ویں ہیلتھ ایشیا انٹرنیشنل میں 24 ممالک کے وفود کی شرکت متوقع۔ 3 روزہ نمائش میں 150 ملین امریکی ڈالر کے کاروباری حجم کی توقع۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اپنی چھت اپنا گھر پروگرام۔ کم آمدن والے 1 لاکھ خاندانوں کو بلا سود اور آسان قرض کا ٹارگٹ مکمل۔ 1,08,035 خاندانوں کو 120 ارب روپے کے قرضے جاری۔ 22,305 گھر آباد۔ 64,190 گھر تکمیل کے آخری مراحل میں داخل۔ مریم نواز شریف کا 1 لاکھ گھر کا ہدف پورا ہونے پر اظہار تشکر۔ گھر بنانے والے تمام افراد کو مبارکباد۔ 5 سال میں 5 لاکھ گھروں کا ہدف پورا کرنے کا عزم غیر متزلزل ہے۔ اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ میں پہلی مرتبہ عام آدمی کو احساس ہوا ریاست ماں کے جیسی ہے۔ مریم نواز شریف۔
पंजाब के अमन को खराब करने की किसी को इजाजत नहीं देंगे। हथियार बंद जत्थों को रियासती रिट चैलेंज नहीं करने देंगे। 28 असलहा डीलर्स के लाइसेंस मंसूख कर दिए गए हैं। अब कोई नया असलहा लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। जिन असलहा डीलर्स के पास लाइसेंस नहीं था उनकी दुकानें सील कर दी गईं। जिनके पास कानूनी असलहा भी है उन्हें खिदमत मराकज़ पर रजिस्ट्रेशन करानी होगी। 90 असलहा डीलर्स के लाइसेंस की जांच पड़ताल जारी है। अब किसी भी बलवाई को हार पहरा कर घर नहीं भेजा जाएगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा ज़ाहिद बुखारी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। DGISPR का सवाबी में गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी का दौरा। हालिया पाक अफगान सरहदी झड़प, सिक्योरिटी सूरत हाल और सोशल मीडिया के किरदार पर बातचीत। तलबा और असातिज़ा की जानिब से शहदा व गाज़ियान पाक अफवाज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में खवारिज की मौजूदगी के खिलाफ मौसर इकदाम किए हैं। आइंदा भी पाक फौज हर दुश्मन की जारहियत के खिलाफ पिलाई दीवार साबित होगी। DGISPR। बैरूनी जारहियत और दहशत गर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों पर बलूच अवाम का पाक फौज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। अफगान तालिबान की बिलाश्ताल जारहियत के खिलाफ पाक फौज की बर वक्त कार्रवाई पर कोयटा के अवाम का मुकम्मल एतमाद। अफगान हुकूमत को चाहिए कि पाकिस्तान में दरअंदाजी करने वाले खारिज पर फौरी काबू पाए। अफगानिस्तान में मौजूद खारिज के तमाम ठिकाने और अड्डे फौरी तौर पर ख़त्म किए जाएँ। पाकिस्तान ने बारहा अफगान हुकूमत से मुतालबा किया है कि अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। शहरी दुनिया दो जौहरी रियासतों के दरमियान तसादुम के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। सदर ट्रंप दुनिया में अमन कायम करने के लिए कोशां हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल खित्ते में मुस्तकिल अमन का ज़ामिन होगा। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात तारीखी तनासुर में खुश आइन तरीन सतह पर हैं। पाकिस्तान माजी की तरह चीन और अमरीका के दरमियान तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। अफगानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशत गर्दी से पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, ताहम अपनी आवाम की सलामती दहशत गर्दों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख का फ्यूचर सिक्योरिटी समिट 2025 से खिताब। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल में पाकिस्तान का शाम पर आयद पाबंदियों में नरमी, इस्लाहात और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़, हेटी के अंदरूनी इत्तेहाद और यकजहती की ज़रूरत पर ज़ोर। शाम में तनाज़े से निकलने के लिए पायदार आलमी शराकत, माशी बहाली और जामे सियासी तजदीद ज़रूरी है। दहशत गर्द गिरोह शाम के लिए संगीन ख़तरा है। पायदार अमन के लिए जामे सियासी और सिक्योरिटी इस्लाहात दरकार हैं। पाकिस्तान हेटी के इस्तेहकाम के लिए अपना तामीरी किरदार अदा करने के लिए पुरज़्म है। सलामती कौंसल में शाम और हेटी की इंसानी और सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तान के कायम मकाम मुस्तकिल नुमाइंदे सफ़ीर उस्मान जुदून का इजहार ख्याल। भारत में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद की नई लहर। मोदी और RSS की हिंदुत्व पॉलिसियों ने भारत को इंतहा पसंदी का गढ़ बना दिया। वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के मुस्लिम मुखालिफ इक़दामात मुसलमानों के खाने और मजहबी आज़ादी पर कदगन लगा दी। योगी नाथ के बयान के बाद भारत में तशद्दुद की नई लहर। रामपुर बिहार में इंतहा पसंद हिंदुत्व हजूम का मस्जिद पर हमला और कुरान पाक की बेहुरमती। भारतीय मीडिया। दिवाली त्यौहार या बदनस्मी, भारतीय शहरी फ़ज़ाई आलूदगी और गंदगी फैलाने में मसरूफ़। दिवाली पर भारतीय शहरियों की अमरीका, बरतानिया, कनाडा और दीगर ममालिक में बद तहजीबी और हुल्लड़बाजी। कनाडा के शहर इंटेरियो में दिवाली के पटाखों से जंगल में आग लगने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अमरीका में कानून को पामाल करके शदीद आतिशबाज़ी और अवामी ज़िंदगी में खलल पैदा किया गया। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। रावलपिंडी टेस्ट जनूबी अफ्रीका के नाम 2 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। रावलपिंडी में जारी दूसरे टेस्ट मैच के दौरान पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान खेला जा रहा ये दूसरा टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका ने जीत लिया है, जिसके बाद इस वक्त सीरीज जो है वो 1-1 से
बराबर हो गई है। जनूबी अफ्रीका ने 8 विकेटों से यह मैच अपने नाम कर लिया है। पाकिस्तान ने पहले इनिंग्स में 333 रन स्कोर किए थे, जबकि साउथ अफ्रीका 404 रन बना सका। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की पूरी टीम 138 रन सिर्फ बना सकी, जिसमें पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ी जो हैं वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, और यूं साउथ अफ्रीका को जो टारगेट मिला वो उसने बाआसानी 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। 68 रन का हदफ मिला था जनूबी अफ्रीका को मजमूई तौर पर, और यूं सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर जनूबी अफ्रीका ने ये स्कोर जो है वो पूरा कर लिया, और यूं जनूबी अफ्रीका ने दूसरा टेस्ट जो है वो अपने नाम कर लिया, और यूं सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। रावलपिंडी टेस्ट के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान खेले जा रहे इस टेस्ट में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है इसमें, और यूं 2 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर रही है। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान ने 333 रन स्कोर किए और साउथ अफ्रीका 404 रन बना सका, जबकि दूसरी इनिंग्स की अगर बात की जाए तो दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की पूरी टीम हमें ऑफ कलर नजर आई, और पाकिस्तान की पूरी टीम जो है सिर्फ 138 रन बना सकी, और यूं 68 रन का मजमूई तौर पर जो है वो हदफ मिला साउथ अफ्रीका की टीम को, जिसे उसने बाआसानी 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। बाबर आजम सबसे नुमाया प्लेयर रहे दूसरे इनिंग्स में, जिन्होंने 50 स्कोर की, जबकि पाकिस्तान के बाकी जो बल्लेबाज हैं इनमें से 8 बल्लेबाज ऐसे थे जो कि डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं हुमैरा राना। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान, और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं और आगाज करेंगे। आगाज में सबसे अहम खबर आपको देंगे। इसराइली फौज जंग बंदी मुआहदे की धज्जियां बिखेरते हुए इसराइली पार्लियामेंट ने मकबूजा मगरबी किनारे को इसराइल में जम करने के गैर कानूनी बिल की मंजूरी दे दी है। बिल के हक में 25 जबकि मुखालफत में 24 वोट पड़े। सऊदी अरब ने इस इकदाम की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि इसराइली आबादकारी और तोसी पसंदाना अज़ाइम को मुस्तरद करते हैं। कतर ने भी इसराइली इकदाम को फ़लस्तीनियों की हुकूक सल्ब करने की कोशिश करार दे दिया। उधर गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फौज के फ़ज़ाई हमलों में मज़ीद 4 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिस ज़ख्मी हो गए। फ़ज़ाई हमलों में मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी की गई, जबकि भूख और प्यास से मजबूर फ़लस्तीनियों को इमदाद की अदम फराहमी के बायस शदीद मुश्किलात का सामना है। इसराइल की जानिब से मुसलसल इमदादी ट्रकों के काफिलों को रफा क्रॉसिंग से गुजरने में बदस्तूर रुकावट डाली जा रही है। फ़लस्तीनी महकमा सेहत का कहना है कि इसराइली जेलों से फ़लस्तीनी हुक्काम के हवाले की गई मज़ीद फ़लस्तीनी कैदियों की मैयतों पर तशद्दुद और मार पीट के निशानात मिले हैं, जिनकी शनाख्त मुमकिन नहीं। गजा के इलाके दीर उल बलाह में 20 शहदा की तदफीन कर दी गई। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी खुद मुख्तारी को कमज़ोर करने की इसराइली कोशिशों की शदीद मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसराइल की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे की हुसूल बशमूल गैर कानूनी इसराइली बस्तियों पर नाम नहाद खुद मुख्तारी के निफाज की कोशिशों, बैनुल-अक़वामी कानून, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों और फ़लस्तीनी अवाम के नाकाबिल तनसीख हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान ने कहा कि ऐसे इश्ताल अंगेज़ और गैर कानूनी इक़दाम खत्े में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों को नुकसान पहुँचाते हैं। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वह ऐसे गैर कानूनी इक़दाम को रोकने के लिए फ़ौरी और मौसर इक़दाम करे और काबिज़ इसराइली अफवाज को बैनुल-अक़वामी कानून की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह ठहराए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान इलाकाई और बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ मिलकर फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, बिलख़ुसूस उनके हक़ खुदरादियत और उनके लिए अमन, इंसाफ और वक़ार को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ मौक़िफ़ की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का भी इआदा किया, जिसमें 1967 से कबल की सरहदों पर कायम आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम शामिल है, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ होगा। आलमी अदालत इंसाफ ने कहा है कि बैनुल-अक़वामी कानून के तहत भूख को जंग के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना ममनू है। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के 11 जजों पर मुश्तमिल बेंच ने अपने फैसले में कहा कि इसराइल पर लाजिम है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा और उसके इदारों बशमूल फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी की जानिब से गजा में इंसानी बुनियादों पर इमदाद की फराहमी की जाने वाली कोशिशों की हिमायत करे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम करते हुए उम्मीद का इजहार किया है कि इसराइल फैसले पर अमल दरामद करेगा, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली सफ़ीर ने कहा है कि उनरवा से मुतालिक अदालत का फैसला शर्मनाक है।
पोलैंड के नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा रादो सॉल्फ की दौरा पाकिस्तान के दौरान दफ्तर ख़ारजा आमद पर मोहम्मद इसाक डार ने अपने पॉलिश हम मनसब का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दफ्तर ख़ारजा में वन ऑन वन और वफूद की सतह पर मुलाकात होगी। मुलाकात में पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर भी बातचीत की जाएगी। दोनों रहनुमा पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल करेंगे। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँचे हैं। नूर खान एयरबेस पर एडिशनल सेक्रेटरी यूरोप खालिद जमाली ने पोलिश नायब वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। पोलिश नायब वज़ीर आज़म स्कोर्स्की का ये दूसरा सरकारी दौरा पाकिस्तान है। पोलिश नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तानी हम मनसब मोहम्मद इसाक डार से मुलाकात करेंगे। रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 का इस्लामाबाद में आगाज़ हो गया है। कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान ने किया। इस मौके पर खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने कहा कि इलाकाई रवाबित का फ़रोग़ इज्तिमाई तरक्की के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान के ख़त्ते में कलीदी हैसियत है। उन्होंने कहा कि माशी तरक्की में ट्रांसपोर्ट का शोबा कलीदी हैसियत रखता है। पाकिस्तान इलाकाई रवाबित को बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। CPEC का मनसूबा न सिर्फ चीन पाकिस्तान बल्कि खत्ते के लिए इनकलाबी कदम है। पाकिस्तान जनूबी और वस्ती एशिया के साथ तजारत के फरोग के लिए पुरअज़्म है। Regional connectivity is not optional. It is essential for stability, growth, and shared progress. Pakistan's strategic location connecting South Asia with Central Asia, the Middle East, and China makes it a natural hub for regional connectivity. CPEC is now widely recognized as a catalyst for energy infrastructure development, transport connectivity, and enhance trade across the whole of South and Central Asia. It embodies our commitment to building partnerships that deliver tangible benefits, not just for Pakistan and China, but for the entire region. इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा कि ट्रांसपोर्ट का मरबूत और जदीद निज़ाम मुल्की मईशत के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करता है। ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी माशी तरक्की के जीने हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तवार करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है, जबकि मोटरवेज़ और हाईवेज़ की तामीर मवासलात के शोबे में हुकूमती अज़्म का मज़हर है। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि ट्रांसपोर्ट के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाया जा रहा है और माहौलियाती मुताबिकत के हामिल ट्रांसपोर्ट निज़ाम को फरोग़ दिया जा रहा है। This conference provides us with a unique opportunity to come together, share perspectives and forge partnerships that can strengthen our transport networks and bring our communities closer than ever before. Transport and connectivity are the pillars of economic growth. They drive trade, enable the movement of goods and people, and serve as critical enablers of regional integration. In today's rapidly evolving world, efficient transport systems are no longer a luxury. They are a necessity for competitiveness, resilience, and sustainability. वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने सिडनी में बैनुल-अक़वामी माइनिंग एंड रिसोर्सेज कॉन्फ्रेंस के दौरान सऊदी सनत व मादनी वसाइल के नायब वज़ीर इंजीनियर खालिद अल मुदाफ़र से मुलाकात की। इस मौके पर वफाकी वज़ीर ने सऊदी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देते हुए कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान देरीना दोस्ती और बेलौस मोहब्बत का रिश्ता है। वफाकी वज़ीर से स्वीडन की स्टेट सेक्रेटरी इंटरनेशनल डेवलपमेंट डियाना जानसी ने भी मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान के मादनी शोबे में बाहमी ताउन और मुमकिन सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया गया। अली परवेज़ मलिक से फ्रांस के स्ट्रेटिजिक मिनरल्स और मेटल सप्लाई के इंटर मिनिस्ट्रियल डेलीगेट बेंजामिन गेल्जो और वर्ल्ड बैंक के ऑपरेशन मैनेजर पैसिफिक रीजन नवीद नकवी की भी मुलाकात हुई। वज़ीर पेट्रोलियम ने सिडनी में पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के अरकान से भी मुलाकात की। इस मौके पर उनका कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान ने कारोबार दोस्त पॉलिसियों के साथ इस्लाहात की हैं। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग्स में बेहतरी इस बात की तस्दीक है। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मुल्की मईशत में अहम किरदार रहा है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत 1 लाख घरों का हदफ पूरा होने पर इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा है कि कम आमदन वाले 1 लाख ख़ानदानों को बिला सूद और आसान कर्ज का टारगेट
मुकम्मल कर लिया गया है। वज़ीर आला ने अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत घर बनाने वाले तमाम अफराद को मुबारकबाद देते हुए 10 माह में 1 साल का हदफ पूरा करने पर अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट की टीम को शाबाश दी है। 1,835 ख़ानदानों को 120 अरब रुपए के कर्ज जारी किए जा चुके हैं, जबकि 22,305 घर आबाद और 64,190 घर तकमील के आखिरी मराहिल में हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट ने हाउसिंग के शोबे में नई तारीख रकम की है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं सूबे के अमन के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाया जाएगा और पंजाब के अमन को ख़राब करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि किसी को कानून हाथ में लेने या हथियार बंद जत्थों को रियासत रिट चैलेंज करने की इजाज़त न होगी। उन्होंने इस्लाम की तालीमात के मुताबिक हर एक के साथ हुस्न सलूक की तलकीन की। अज़मा बुखारी ने बताया कि पंजाब में 10,12,454 के पास इनफरादी असलहा लाइसेंस हैं। हुकूमत ने 28 असलहा डीलर्स के लाइसेंस मनसूख कर दिए हैं और बगैर लाइसेंस वालों की दुकानें सील कर दी गई हैं और अब कोई नया लाइसेंस जारी न होगा। 511 डीलर्स ने तौसीक की दरख्वास्त दी है, जिनमें 90 के कागजात की जांच जारी है। कानूनी असलहा रखने वालों को खिदमत मराकज़ में रजिस्टर्ड कराना होगा। TLP जैसे इंतहा पसंद गिरोहों पर वफाकी सतह पर फैसला आने वाला है, जो गजा और फ़लस्तीन की आज़ादी के नाम पर अमलाक जलाने, पुलिस पर तशद्दुद, गाड़ियाँ छीनने और शहरी नुकसान पहुँचाने जैसे वाक़यात का ज़िम्मेदार है। हुकूमत दहशत गर्द जहनीत के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और वालिदैन को खबरदार किया कि बच्चों को फसादात का हिस्सा न बनने दें। DGISPR ने स्वाबी में गुलाम खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी का दौरा किया, जहां उन्होंने तलबा से पाक अफगान सरहदी सूरत हाल, सिक्योरिटी उमूर और सोशल मीडिया के किरदार पर गुफ्तगू की। DGISPR ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मौजूद खारिज के खिलाफ मौसर इक़दाम किए हैं। पाक फौज हर दुश्मन के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार है। उन्होंने नौजवानों को मुल्क की तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन करार देते हुए उनके मुस्बत किरदार को सराहा। तलबा ने शहदा और गाजियान पाकिस्तान को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया और कहा कि ऐसी बामकसद नशिस्तें डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडे में खात्मे में मददगार साबित होती हैं। आज हमने जिस तरह DGISPR से बात की एंड ही आंसर्ड एवरीवन एंड एवरी क्वेरी एंड इट रियली हेल्प्ड अ लॉट। क्योंकि एज अ स्टूडेंट हमें कुछ सवालात होते हैं जिनके जवाबात जो है एक आम बॉडी या सोशल मीडिया पे हमें नहीं प्रोवाइड हो सकते, इसीलिए इस तरह के सेशंस होना बहुत ज़रूरी हैं। इट वाज अ वेरी इंटरेक्टिव सेशन और बहुत अच्छा सेशन था एंड वी वुड वांट कि आइंदा भी इस तरह के सेशंस मुनक्किद किए जाएं ताकि स्टूडेंट्स को अपने पाक फौज के मतलब जो इंफॉर्मेशन मिल सके। क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ और डिफरेंट क्यूरीज के बारे में DGISPR से बात की, जिनका उन्होंने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स किया और हमारी काफ़ी सारी मिसकॉन्सेप्शंस को क्लियर किया अबाउट KP सिचुएशन, जिस तरह KP के अंदर हालात हैं, अबाउट द रिसोर्सेज एक्सेट्रा एंड आर्मी के अगेंस्ट जो प्रोपेगेंडा है उस सारे के बारे में हमें बताया और जो हमारी क्वेरीज थी, जो मिसकॉन्सेप्शंस KP के बारे में हमें बताए गए थे, वो सारे हमारे लिए क्लियर किए गए। SIFC के ताउन से 22वीं हेल्थ एशिया इंटरनेशनल नुमाइश आज कराची एक्सपो सेंटर में मुनक्किद हो रही है। ये नुमाइश ई-कॉमर्स गेटवे पाकिस्तान और वजारत सेहत की मुश्तरका काविश है। 22वीं हेल्थ एशिया इंटरनेशनल नुमाइश में 24 ममालिक के वफूद की शिरकत मुतवक्के है। शिरकत करने वाले वफूद में चीन, रूस, ईरान, बरतानिया, तुर्की और हंगरी शामिल हैं। 3 रोज़ा नुमाइश में 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कारोबारी हजम की तवक्को है। इवेंट की बदौलत डिजिटल हेल्थ और मुस्तकबिल के अस्पताल पर खुसूसी कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया जाएगा। ये नुमाइश पाकिस्तान में सेहत के शोबे की डिजिटलाइजेशन, जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के लिए संगीन। अफगान तालिबान की बिला इख्तियार जारहियत के खिलाफ पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई पर कोयटा के अवाम ने मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए कहा है कि अफगान हुकूमत को चाहिए कि पाकिस्तान में दरअंदाजी करने वाले खवारिज को फौरी ख़त्म किया जाए और उन पर काबू पाया जाए। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में मौजूद खारिज के तमाम ठिकाने और अड्डे फौरी तौर पर ख़त्म होने चाहिए। पाकिस्तान ने बारहा अफगान हुकूमत से मुतालबा किया है कि अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। अफगान हुकूमत ने कोई कदम ना उठाया तो पाकिस्तान ने मजबूर होकर दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। हमने अपने तरफ से हर मुमकिन कोशिश किया है, लेकिन उसको भी अब सोचना चाहिए कि वो हिंदुस्तान के हाथों खिलौना ना बने। देयर इज नो डाउट कि अफगान हमारा हमसाया मुल्क अफगानिस्तान और उसके शहरी हमारे मुसलमान भाई हैं। पाकिस्तान फौज ने
पाकिस्तानी आवाम की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए इस हक को इस्तेमाल किया और दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया। मारूफ अमरीकी थिंक टैंक न्यू अमरीका और सिक्योरिटी एंड डिफेंस पल्स के इश्तराक से फ्यूचर सिक्योरिटी समिट 2025 का इनेकाद किया गया। अमेरिका में सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख का फ्यूचर सिक्योरिटी समिट में पाक अमेरिका ताल्लुकात के मुस्तकबिल, माहौलियाती तब्दीली के मुश्तरका चैलेंज, मार्का हक, मसला कश्मीर, पाक चीन दोस्ती, दहशतगर्दों की जानिब से अफगान सरजमीन का इस्तेमाल, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों समेत यूक्रेन और आलमी मामलात पर इजहार ख्याल किया। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है। माहौलियाती तब्दीली से मुतासरा आवाम को माशी तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी के लिए कोशिश जारी है। उन्होंने कहा कि इस चैलेंज से निपटने के लिए IMF और आलमी बैंक के साथ भी काम कर रहे हैं। मार्का हक के हवाले से उनका कहना था कि भारत ने अपनी इंतज़ामी नाकामियों और सियासी मजबूरियों के पेश नज़र पहलगाम वाक़े का मलबा पाकिस्तान पर डालना चाहा। पाक भारत जंग बंदी में अमरीकी सदर के किरदार के तामीरी किरदार के मुतरफ़ हैं। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल खित्ते में मुस्तकिल अमन का ज़ामिन होगा। रिजवान सईद शेख का कहना था कि अफगानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी से पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्कों में शामिल है और पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान ने शाम और हेटी की बदलती हुई सूरत हाल पर इजहार ख्याल करते हुए दोनों ममालिक में अंदरूनी इत्तेहाद, माशी बहाली और कौमी खुद मुख्तारी के एहतराम पर जोर दिया। हेटी के हवाले से इजलास में पाकिस्तान के कायम मकाम मुस्तकिल नुमाइंदे सफ़ीर उस्मान जदूद ने कहा कि मुल्क को दरपेश सलामती, इंसानी और इक़्तिसादी बहरानों से निपटने के लिए हेटी की क़यादत में और हेटी की मिल्कियत पर मबनी अमल नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि पायदार इस्तेहकाम के लिए इदारा जाती इस्लाहात, कानून की हुक्मरानी और रियासती इस्लाहात में इजाफा ज़रूरी है। शाम की सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए सफ़ीर उस्मान जदूद ने आलमी यकजहती, पाबंदियों में नरमी और तामीर नौ के मुस्तकिल इक़दाम पर जोर दिया। उन्होंने इसराइल की जानिब से 1974 के अलहदगी मुआहदे के खिलाफ सख्त मज़म्मत की। उस्मान जदूद ने दोनों ममालिक के हवाले से पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ का इआदा करते हुए कहा कि Your delegation, colleagues, very good morning and welcome to Ministry of Foreign Affairs. I have learnt that it is the last visit you made is 2011, but you just shared with me that first one was to 1986. Marvelous. So, but there shouldn't be so big gaps in your visits. So we look forward to have your more future visits in our country. We have, on behalf of my colleagues and myself, we welcome you in the Ministry of Foreign Affairs and in Pakistan. Excellency, when I learned that EU Vice President Kaja Kallas had nominated you to visit Pakistan on our behalf, but that your visit was also on behalf of the EU, it was my personal wish to welcome you to Pakistan in a bilateral context, as well as you are familiar with the region and have served as a wartime correspondent in the region, according to my information, in the 1980s. Pakistan deeply values its historically warm and friendly relations with Poland. Our relations have been premised upon mutual respect, goodwill and amity since the establishment of diplomatic relations in 1962. Our two countries have unique historic connections. During World War II, the Polish refugees found shelter in present-day Karachi and Quetta, which are part of Pakistan, and Polish Air Force veterans played invaluable role of laying the foundations of Pakistan Air Force. These exceptional, men belong to Poland, but Pakistan lays claim to them in equal measures and continues to remember them as our national heroes. We take inspiration from Poland's long struggle for its freedom and sovereignty against formidable odds. It is not an exaggeration to state that modern-day Europe owes quite a lot to the founder of Poland's Second Republic. The remarkable transition and economic success Poland had achieved since 1991 to now become a $1 trillion economy is truly impressive. We are still less than half of your size of your economy.
We congratulate Poland on the successful and smooth presidential elections. We hope that our bilateral relations will continue to follow an upward trajectory, and this is going to be one of the first of your many visits to Pakistan. Excellency, I now invite you to share your opening remarks, and then, with your permission, I'll ask the media to leave. Please, floor is yours. Thank you very much, Minister, for those kind words. You're right that for me, visiting Pakistan is a sentimental journey as well as an official one. And yes, I also wished I could have arrived during our presidency, but rest assured, I will convey everything that we've discussed to Kaja Kallas, to my EU colleagues. And I'm glad to say that relations between Poland and Pakistan are good. Not that intense, but good. There are no outstanding issues, and we have things to offer to each other, and important challenges in our respective neighborhoods. We were both victims. पाकिस्तान और पोलैंड के माबैन वफूद की सतह पर मुलाकात। पोलैंड के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा खिताब कर रहे थे। इसहाक़ ने कहा कि मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा किया। पोलैंड के साथ हमारे बाहमी एहतराम पर मबनी मजबूत ताल्लुकात हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ ने कहा कि पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान रवाबित को मज़ीद बढ़ाने के हवाले से बेहतरीन इस्तकबाल और मेहमान नवाजी करने पर पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म का भी शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि हम मौज़ूज़ मेहमान को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहते हैं। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का भी अदा किया गया। इसहाक़ ने कहा कि पोलैंड के साथ हमारे बाहमी एहतराम पर मबनी मजबूत ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान मजबूत राबते कायम हैं। उन्होंने कहा इस मौके पर नायब वज़ीर-ए-आज़म पोलैंड का कहना था कि बेहतरीन इस्तकबाल और मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। आपको आगाह करें कि पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात के मनाज़र इस वक्त आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर होने वाले इन मुज़ाकरात के अंदर दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने के हवाले से बातचीत की जा रही है। इस मौके पर खिताब करते हुए ओपनिंग रिमार्क्स देते हुए नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ ने अपने आने वाले जो मौज़ूज़ मेहमान हैं उनका भी शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि हम मौज़ूज़ मेहमान को पाकिस्तान आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का भी अदा किया गया है। इसहाक़ ने कहा कि पोलैंड के साथ हमारे बाहमी एहतराम पर मबनी मजबूत ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान मजबूत राबते कायम हैं। इस मौके पर नायब वज़ीर-ए-आज़म पोलैंड का कहना था कि बेहतरीन इस्तकबाल और मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मुस्बत समत में आगे बढ़ेंगे। पोलैंड के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर हैं और इससे कबल जब वो दफ्तर ख़ारजा पहुँचे तो मरकज़ी दरवाज़े पर नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ ने उनका इस्तकबाल किया, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर इस वक्त मुलाकात जारी है। कुछ दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हैं। भारत में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद की नई लहर, सेकुलरिज्म के दावे धरे के धरे रह गए। मोदी और आरएसएस की हिंदुत्व पॉलिसियों ने भारत को इंतहा पसंदी का गढ़ बना दिया है। वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आरएसएस की 100 साला तकरीब जश्न से नफरत अंगेज़ खिताब करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफाइड मसनूआत की फ़रोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सियासी इस्लाम ने भारत को टुकड़े टुकड़े करने और आबादी का तवाज़ुन बदलने की कोशिश की। भारतीय मीडिया के मुताबिक योगी हुकूमत की बुलडोज़र पॉलिसी के तहत 2017 से अब तक हज़ारों मुस्लिम ख़ानदानों के मकानात मिस्मार किए जा चुके हैं। मोदी राज में मजहबी इंतहा पसंदी मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसियों ने भारतीय सेकुलरिज्म के दावे को बेनकाब कर दिया है। दिवाली त्यौहार या बदनज़मी, बैरून मुल्क मुक़ीम भारतीयों ने तरक्की याफ्ता शहरों का हुस्न गहना दिया। दिवाली त्यौहार के मौके पर बैरून मुल्क मुक़ीम भारतीय शहरी फ़ज़ाई आलूदी और गंदगी फैलाने में मसरूफ़ रहे। इस मौके पर भारतीय शहरी ने अमरीका, बरतानिया, कनाडा और दीगर ममालिक में बद तहज़ीबी और हुल्लड़बाजी की रवश बरकरार रखी। कनाडा के शहर इंटोरियो में दिवाली के पटाखों से जंगल में आग लगने का अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया। चंद शरपसंद भारतीयों ने अमरीका में कानून को पामाल करके शदीद आतिशबाजी और अवामी ज़िंदगी में खलल पैदा किया। दिवाली त्यौहार के मौके पर बैरून मुल्क मुक़ीम भारतीयों की बद तहज़ीबी ने मजहबी त्यौहार को मुतनाज़ बना दिया।
अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूसी सदर पुतिन से मिलना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए मुलाकात मनसूख कर दी। व्हाइट हाउस में नेटो के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन से हमेशा अच्छी गुफ्तगू हुई, ताहम कोई नतीजा नहीं निकला। नेटो सेक्रेटरी जनरल और ट्रंप के दरमियान मुलाकात में सिक्योरिटी मामलात, खास तौर पर यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी कशीदा सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि रूस पर पाबंदियां लगाने का ये सही वक्त है ताकि जंग बंदी के लिए दबाव बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि बाइडन दौर अमेरिकी तारीख का बदतरीन दौर था जिसमें ये जंग शुरू हुई, इसे ख़त्म करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। द स्टार्ट पहली हेलीकॉप्टर मोदी हुकूमत की तरह नाकारा। भारतीय सदर मरहूम का सरकारी हेलीकॉप्टर रियासत केराला में एक खौफनाक हादसे से दोचार होते होते रह गया। केराला में भारतीय सदर को हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाना था, जिसके लिए हंगामी बुनियादों पर एक स्टेडियम में हेलीकॉप्टर पैड बनाया गया था। तहम हेलीपैड पर लैंडिंग के दौरान ही हेलीकॉप्टर अचानक एक तरफ से ज़मीन में धंस गया, जिसके बाद दर्जनों एहलकार हेलीकॉप्टर को सीधा करने की कोशिश में लगे रहे और हेलीकॉप्टर को सहारा दिया ताकि वो उलट न जाए। इसी दौरान भारतीय सदर और दीगर अफराद को बाहर निकाला गया। यूरोप जाने वाले तारकिन वतन की कश्ती को ट्यूनिस में हादसा पेश आया, जिसमें 40 अफराद हलाक हो गए। हुकाम के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाली कश्ती में मजमूई तौर पर 70 अफराद सवार थे, जिनमें से 30 की जिंदगी बच गई जबकि 40 को निकाल लिया गया। तारकिन वतन का ताल्लुक अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक से था। दीगर कौमी खबरों के जाने बढ़ते हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी से नए डायरेक्टर जनरल नैब कराची शकील अहमद दुरानी ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। मुलाकात में सूबे से करप्शन के खात्मे और तरक्याती मनसूबों में शफाफियत के फ़रोग़ और करप्शन केसेस की जल्द तहकीकात यकीनी बनाने पर गुफ्तगू हुई। गवर्नर सिंध ने नैब के किरदार को सराहते हुए अपने हर मुमकिन ताउन की भरपूर यकीन दहानी भी कराई। उन्होंने कहा कि नैब बदउनवानी के खात्मे और शफाफ तर्ज हुक्मरानी के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रहा है। डायरेक्टर जनरल नैब कराची शकील अहमद दुरानी ने सूबे से करप्शन के मुकम्मल खात्मे और मुलव्वस अनासर को जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाने के अज़्म का इजहार किया। इस मौके पर साबिक डायरेक्टर जनरल नैब जावेद अकबर रियाज भी मौजूद थे। कराची में चीनी कौंसलेट की जानिब से ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की मुनक़दा तक़रीब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा फरियाल तालपुर ने खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती अमन, तरक्की और मुसावात के ख्वाबों की शराकतदारी है जो बाहमी एतमाद और एहतराम की बुनियाद पर कायम है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन की तरक्की दरअसल कौमी तरक्की की ज़मानत है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ख़वातीन के सियासी और माशी हुकूक़ के लिए तारीखी जद्दोजहद की, जिसे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और सदर आसिफ अली ज़रदारी आगे बढ़ा रहे हैं। तक़रीब से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा ख़वातीन को अपनी पॉलिसियों का मरकज़ रखा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आइन के ज़रिए मर्द और औरत को बराबरी के हुकूक़ दिए हैं। चीनी कौंसल जनरल योंग योन डोंग ने कहा कि चीन सिनफ़ी मसावात को कौमी पॉलिसी का हिस्सा समझता है और आइंदा बरसों में पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए तालीमी और तरबीती मौक़े में मज़ीद इजाफ़ा किया जाएगा। इस्लामाबाद में साबिक सेक्रेटरी इत्तलात अमरीन जान के एजाज़ में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में वफाकी वज़ीर इत्तलात नशरियात अताउल्लाह तारड़ समेत वज़ारत इत्तलात के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर साबिक सेक्रेटरी इत्तलात की खिदमात को भरपूर अंदाज में खिराज तहसीन पेश किया गया। रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। वज़ारत इत्तलात में खिदमात अंजाम देने वाली सेक्रेटरी इत्तलात अमरीन जान के लिए अलविदाई तकरीब में जज्बात और यादगार लम्हात की बाज़गश्त का हसीन इम्तिजाज नजर आया। मुनक्किदा तकरीब में वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने अमरीन जान की पेशा और कायदाना खिदमात को सराहा। वफाकी वज़ीर का कहना था कि मुश्किल हालात में अमरीन जान ने नहायत जुर्रत और तदबीर के साथ वजारत की भागदौड़ संभाली। एक ऐसी सेक्रेटरी हमें मुयस्सर आई कि जो ना सिर्फ एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी की मालिक थी, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने मिनिस्ट्री के हर मामले पर बड़ी ऑनेस्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ, साफ नीयत के साथ और एक टीम वर्क के तहत पूरी मिनिस्ट्री को चलाया। तो आई थिंक आपको आज के दिन हम खिराज तहसीन पेश करते हैं कि आपने जो एक बेहतरीन सर्विस दी है पाकिस्तान को। इस मौके पर साबिक सेक्रेटरी इत्तलात ने वजारत और पीटीवी से अपनी वाबस्तगी को जिंदगी का कीमती सरमाया करार दिया। उन्होंने कहा कि दौरान सर्विस वजारत से मुंसलिक अफराद से बेपनाह एहतराम पाया। जितना प्यार मुझे इस मिनिस्ट्री से मिला है मैं उतना दे नहीं सकी जितना मुझे मिला है। From each one of you, from my colleagues, from my seniors, from my juniors, especially from my staff. तो I still have a very hard feeling for officers जिनका प्यार मिला है, I can't repay.
वजारत इत्तलात के साथी अफसरान और अहलकार ने अमरीन जान को बेहतरीन कायद और मुतासिर कुन शख्सियत के तौर पर खराज तहसीन पेश किया। तकरीब के इख्तिताम पर PTV की जानिब से साबिक सेक्रेटरी इत्तलात अमरीन जान को यादगारी शील्ड और फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अहलिया शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वालिदा और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की नानी बेगम नुसरत भुट्टो को जहान फ़ानी से रुखसत हुए 14 बरस बीत गए। उनकी शाइस्तगी, वज़ादारी, ज़िंदा की असीरी और सियासत के पुरकार सफ़र का अहाता किया है सुहेल जमाली ने। पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अहलिया बेगम नुसरत भुट्टो ईरान के शहर इस्फहान में 23 मार्च 1929 को पैदा हुई। उनका ताल्लुक एक खुशहाल ताजिर घराने से था जिसने क़याम पाकिस्तान से कबल बम्बई से कराची हिजरत की। 1951 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो से कराची में उनकी शादी हुई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे सदारत और बाद में वज़ारत उज़्मा में नुसरत भुट्टो 2 मरतबा मुल्क की खातून अव्वल रहीं। 5 जुलाई 1977 को भुट्टो हुकूमत के खात्मे के बाद वो नजर बंद रहीं। शौहर की फांसी के बाद बेगम नुसरत भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुनज़्ज़म किया। उन्होंने जमहूरियत की बहाली की जिद्दोजहद की जिसमें उन्होंने इस्तकामत से तशद्दुद और कैदोबंद की सऊबतों का सामना किया। वो 1979 से 1984 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दूसरी चेयरपर्सन रहीं। बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा का एक बहुत बड़ा कद है इस मुल्क की सियासी तारीख में, जमहूरी जिद्दोजहद में। उनकी जो जिद्दोजहद है अगर हम वो से निकाल दें तो पाकिस्तान की सियासी तारीख, जिद्दोजहद की तारीख जो है वो नामुकम्मल रहती है। बेगम नुसरत भुट्टो कई मरतबा रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुई और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में सीनियर विफाकी वजीर के ओहदे पर फाइज रहीं। अपनी जिंदगी में उन्हें अपने शौहर और अपने 2 जवान बेटों शाहनवाज भुट्टो, मुर्तज़ा भुट्टो और बेटी बेनज़ीर भुट्टो की गैर फितरी मौत का सदमा बर्दाश्त करना पड़ा जिससे वो जहनी तौर पर शदीद मुतासिर हुई। तवील अलालत के बाद 23 अक्टूबर 2011 को वो दुबई में इंतकाल कर गईं। उन्हें घड़ी खुदा बख्श लाड़काना में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पहलू में सपुर्दे खाक किया गया। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की हुकूमत में बेगम नुसरत भुट्टो को मुल्क में बहाली जमहूरियत के लिए कुर्बानियों और खिदमात के एतराफ़ में बाद अज मर्ग पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान देने का ऐलान किया गया। ये तमगा एजाज़ 23 मार्च 2012 को मादर जमहूरियत के वरसा को दिया गया। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वज़ीर आज़म सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मादर जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो की 14वीं बरसी पर खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा है कि वो एक अहद साज और बहादुर शख्सियत थी। उनकी जमहूरियत, आइन और अवामी हुकूक के लिए खिदमत नाकाबिल फरामोश हैं। बेगम नुसरत भुट्टो ने जमहूरियत की बहाली के लिए कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की और उसूलों पर कभी समझौता न किया। आज उनकी बरसी अक़ीदत और एहतराम से मनाई जा रही है जहाँ उनकी कुर्बानियाँ पाकिस्तान की सियासी तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखी जाएंगी। दुनिया भर में आज बर्फानी चीते का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद इस नायाब और खूबसूरत जानवर के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में आगाही पैदा करना है। गिलगित से हमारी नुमाइंदा शाहीन सफ्तर रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान में बर्फानी चीते गिलगित बल्तिस्तान के दुश्वार गुजार इलाकों में पाए जाते हैं। बर्फानी चीता न सिर्फ हयातियाती तनों की इलामत है बल्कि उसे पाकिस्तान की पहाड़ी माहौलियाती निज़ाम का अहम हिस्सा भी समझा जाता है। स्नो लेपर्ड को ज़्यादातर खतरात जो हैं वो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जिसको हम कहते हैं उसके ख़तरात इसको ज़्यादा हैं और उसे निपटने के लिए गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ KP एंड गवर्नमेंट ऑफ AJK वो काफ़ी अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं। उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस पे वर्किंग कर रहे हैं। कभी हमने रिकॉर्ड नहीं किया कि इसने किसी इंसान को नुकसान पहुंचाया हो। तो हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए, इसकी हैबिटेट की हिफाजत करनी चाहिए। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक दुनिया भर में बर्फानी चीतों की तादाद तेजी से कम हो रही है जिसकी बड़ी वजूहात गैर कानूनी शिकार, कुदरती मस्कन की तबाही और माहौलियाती तब्दीलियां हैं। गिलगित बल्तिस्तान में महकमा जंगली हयात और मुख्तलिफ तंजीमें बर्फानी चीते की तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकामी कम्युनिटी के ताउन से खुसूसी इक़दामात कर रही है। शाहीन सफदर, PTV न्यूज़, गिलगित। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की विजन और आवाम दोस्त पॉलिसियों के तहत ननकाना साहब में सैलाब मुतासिरीन की बहाली के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। ये इकदाम सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों की ज़िंदगियों को दोबारा बहाल करने और उनमें नई उम्मीद पैदा करने की एक अहम कोशिश है। रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद अहमद मुआविया।
ضلعی انتظامیہ کی طرف سے گورنمنٹ گرو نانک ہائر سیکنڈری اسکول میں سیلاب متاثرین کے لیے لگائے گئے بحالی کیمپ میں 4 کاؤنٹرز بنائے گئے ہیں جہاں روزانہ 500 سے زیادہ متاثرین کو شفاف اور ڈیجیٹل طریقے سے پنجاب حکومت کی طرف سے طے کردہ امدادی رقوم اور ATM کارڈ فراہم کیے جا رہے ہیں۔ مرتبہ سیلاب زدگان کی جو مدد ہو رہی ہے، جس پلاننگ کے ساتھ ہو رہی ہے، جس شفافیت کے ساتھ ہو رہی ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کی ماضی میں کوئی بھی اس کا کوئی کمپیریزن ہم کسی کے ساتھ کر سکیں۔ یہ مہمان چیف منسٹر کے مہمان ہیں، ان کو ہم کھانا بھی دیتے ہیں، اس کو ہم سنیکس بھی دیتے ہیں اور چائے بھی آفر کرتے ہیں اور ان کو خود ٹرانسپورٹ کر کے ہم یہاں پہ لے کے آتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر کیمپ میں آنے والے تمام متاثرین کے لیے ٹرانسپورٹ، بیٹھنے کے لیے کرسیاں، پینے کے صاف پانی، کھانے اور چائے کا انتظام کیا۔ Mr. Mohammad Junaid Anwar, the Minister for Maritime Affairs. I'm sorry I missed your documentary, which was supposed to be there before your speech, but with your permission, I'm now asking them to have the documentary play for the Maritime Affairs. Thank you. کانفرنس اس وقت اسلام آباد میں جاری ہے جس کے مناظر آپ دیکھ رہے تھے، اور ابھی کچھ دیگر موسم کی خبروں کے حوالے سے آپ کو لیے چلتے ہیں عبدالقدیر کی جانب۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب کے ماحول دوست ویژن کے تحت صوبے بھر میں فصلوں کی باقیات جلانے کا رجحان تیزی سے کم ہونے لگا ہے۔ جدید زرعی مشینری خصوصاً سپر سیڈرز کی فراہمی نے نہ صرف فضائی آلودگی پر قابو پانے میں مدد دی ہے بلکہ کاشتکاروں کے لیے معاشی آسانیاں بھی پیدا کی ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں فرحان مرزا۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں کسان اب فصلوں کی باقیات کو جلانے کی بجائے جانوروں کے چارے اور نامیاتی کھاد کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ ضلع چنیوٹ، اکاڑا، پاکپتن، ناروال اور فیصل آباد میں جدید مشینری کے استعمال سے سموگ میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 5000 سپر سیڈرز کی مدد سے 2 لاکھ ایکڑ رقبہ ایسا رہا جہاں فصلوں کی باقیات جلائی نہیں گئیں۔ اسی سلسلے میں کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان میں کلین ایئر پروگرام کے تحت سپر سیڈرز کی قرعہ اندازی کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں 310 درخواستوں میں سے 146 اہل قرار پائے، جن میں سے 38 خوش نصیب کاشتکاروں کو سپر سیڈرز فراہم کیے جائیں گے۔ چاول کی جو باقیات ہیں ان کو جلانے کی یا ان کو ضائع کرنے کی اور ماحول کو آلودہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ وہ جو دھان کا پرالی کھیت میں بکھری ہوئی ہوگی اس میں ہی یہ سپر سیڈر گندم کی بجائی کر دے گا۔ سپر سیڈر کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم وہ پلالی جو ہے اس کو روٹاویٹ کر کے زمین کے اندر چلی جائے گی، اور ساتھ ہی ڈرل کے ساتھ جب گندم کاشت ہوگی اس میں بیج اور جو ہماری فرٹیلائز ہے وہ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی لائن میں آئے گی، اس سے کم از کم 10 سے 12 من پر ایکڑ کا فرق آ جاتا ہے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے 1 یونٹ پر 8 لاکھ روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے، جبکہ کل لاگت کا 60% حصہ حکومت برداشت کر رہی ہے۔ جدید مشینری کے استعمال سے نہ صرف ماحول دوست کاشتکاری کو فروغ ملے گا بلکہ زمین کی زرخیزی اور فصلوں کی پیداوار میں بھی نمایاں اضافہ متوقع ہے۔ فرحان مرزا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ ناظرین، پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر لودھرا میں بھی اسموگ سے بچاؤ کے لیے جامع اقدامات جاری ہیں۔ ضلع انتظامیہ، ویسٹ مینجمنٹ کمپنی، ٹریفک پولیس اور دیگر ادارے مل کر اسموگ کے خاتمے کے لیے سرگرم ہیں۔ عبداللہ ڈاہا کی رپورٹ دیکھیے۔ لودھرا کی تینوں تحصیلوں میں اسموگ سے بچاؤ کے لیے انتظامیہ ایکشن میں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر ڈیوو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی ٹیمیں لودھرا میں دن رات متحرک ہیں، جو شہر بھر میں سڑکوں اور گلیوں میں پانی کا چھڑکاؤ اسموگ گن سے کر رہی ہیں تاکہ فضائی آلودگی میں کمی لائی جا سکے۔ حکومت پنجاب اور ہمارے سی ایم صاحب پنجاب کے حکم پر جو ان دنوں اسموگ کا سیزن شروع ہو گیا ہے، ایسی گاڑیوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جا رہی ہے جو دھواں چھوڑ رہی ہیں اور ماحول کو آلودہ کر رہی ہیں۔ دوسری جانب اسموگ سے متعلق عوامی شعور اجاگر کرنے کے لیے آگاہی واک کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے۔ ٹریفک پولیس لودھرا کی جانب سے دھواں چھوڑتی گاڑیوں کے خلاف بھی ایکشن لیا جا رہا ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے بٹھا مالکان کو بھی واضح ہدایت کی ہے کہ وہ مالیاتی قوانین پر سختی سے عمل کریں اور اینٹوں کے بٹھوں پر زگ زیگ ٹیکنالوجی کا استعمال یقینی بنائیں۔ ضلع لودھرا کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اسموگ پر قابو پانے کے لیے نہ صرف عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں بلکہ عوامی تعاون کے بغیر اس مہم کو کامیاب بنانا ممکن نہیں۔ عبداللہ ڈاہا، ٹی ٹی وی نیوز، لودھرا۔
لودھرا کے بعد رخ کریں گے رحیم یار خان کا، جہاں اسموگ کے تدارک کے لیے خصوصی اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے میں اسموگ آگاہی سیمینار اور واک کا اہتمام کیا جا رہا ہے تاکہ کاشتکاروں کو فصلوں کی باقیات نہ جلانے کی ترغیب دی جا سکے۔ اشفاق احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ رحیم یار خان میں اسموگ کے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر محکمہ زراعت اور ضلعی انتظامیہ نے احتیاطی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ محکمہ زراعت کی جانب سے کاشتکاروں میں آگاہی مہم چلائی جا رہی ہے، جس میں انہیں ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ فصلوں کی باقیات کو نہ جلائیں۔ اس عمل سے ماحولیاتی آلودگی اور اسموگ میں اضافہ ہوتا ہے۔ ضلع کے مختلف علاقوں میں اسموگ سے بچاؤ کے عنوان سے آگاہی واک بھی نکالی جا رہی ہے۔ ذمہ داروں کو نوٹس دیے جا رہے ہیں، ان کو اویئرنیس سیمینارز ہو رہے ہیں، اویئرنیس ریلیز ہو رہی ہیں، فارمر ٹریننگ پروگرام میں ہم ان کو بتا رہے ہیں، نمبردار کنونشن کی ہے اس میں ان کو بتا رہے ہیں، موضوع وائز جو ہے ہماری سموگ کی جو کمیٹیز بنی ہوئی ہیں جس میں نمبردار ہیں، جس میں محکمہ زراعت کا کارکن ہے، جس میں پٹواری ہیں، ان کے تھرو بھی ہم اویئرنیس دے رہے ہیں۔ سموگ کے حوالے سے محکمہ زراعت نے ہمیں اچھی آگاہی دی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم اپنے چاول اور شوگر کین کی باقیات کو نہ جلائیں۔ عوام کو اسموگ سے پاک اور صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کے لیے رحیم یار خان کی ضلعی انتظامیہ ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ شہریوں کو اسموگ سے بچاؤ کے لیے احتیاط کرنے اور فضائی آلودگی کے دوران گھروں سے باہر نکلتے ہوئے ماسک کے استعمال کو یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ اشفاق احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، رحیم یار خان۔ کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید، اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں راولپنڈی ٹیسٹ جنوبی افریقہ کے نام 68 رنز کا آسان ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ قومی ٹیم نے سیریز جیتنے کا سنہری موقع گنوا دیا۔ 2 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر رہی۔ قومی ٹیم دوسری اننگز میں صرف 138 رنز بنا سکی، 6 کھلاڑی ڈبل فگر تک نہیں پہنچ سکے۔ بابر اعظم 50 رنز کے ساتھ نمایاں رہے، سلمان علی آغا نے 28، محمد رضوان نے 18، سعود شکیل نے 11 اور ساجد خان نے 13 رنز بنائے۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے سائمن ہاربر نے 6 کھلاڑیوں کو چلتا کیا، کیشف مہاراج نے 2 اور کگیسور آبادہ نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ پہلی اننگز میں پاکستان کے 333 رنز کے جواب میں جنوبی افریقہ نے 404 رنز بنائے تھے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان T20 سیریز 28 اکتوبر سے شروع ہوگی۔ پاکستان کے نعمان علی آئی سی سی ٹیسٹ بالرز رینکنگ میں کیریئر بیسٹ پوزیشن پر آ گئے۔ نعمان علی نے رینکنگ میں دوسری پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے لاہور ٹیسٹ میں جنوبی افریقہ کے خلاف 10 وکٹیں حاصل کر کے اپنی رینکنگ کو بہتر بنایا۔ نعمان علی 29 پوائنٹس کے فرق سے بھارت کے جسپریت بمراہ سے پیچھے ہیں۔ نعمان علی 853 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ پاکستان کے 7ویں بالر بن گئے، جنہوں نے 850 پوائنٹس کا سنگ میل عبور کیا۔ پاکستان نے وائٹ بال کرکٹ سیریز کے لیے اسکواڈز کا اعلان کر دیا ہے۔ T20 انٹرنیشنلز کے لیے 15 رکنی جبکہ ون ڈے کے لیے 16 رکنی اسکواڈز کا اعلان کیا گیا ہے۔ عثمان طارق پہلی بار T20 اسکواڈ کا حصہ بنے ہیں۔ سابق کپتان بابر اعظم، نسیم شاہ اور عبدالصمد کی T20، حارث رؤف، حسیب اللہ اور فیصل اکرم کی ون ڈے اسکواڈ میں واپسی ہوئی ہے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان T20 سیریز 28 اکتوبر سے 1 نومبر تک راولپنڈی اور لاہور میں کھیلی جائے گی۔ ون ڈے سیریز 4 سے 8 نومبر تک فیصل آباد میں ہوگی۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ون ڈے سیریز 11 سے 15 نومبر تک راولپنڈی اسٹیڈیم میں ہوگی۔ Excellencies, Pakistan Railway is one of the oldest and extensive railway networks in South Asia. Today, we stand committed to making Pakistan Railways a modern and efficient service provider and our standards. Pakistan Railways its journey of ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹر کانفرنس 2025 اس وقت اسلام آباد میں جاری ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی اس وقت خطاب کر رہے ہیں ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹر کانفرنس 2025 سے، جس کا اسلام آباد میں آغاز ہو چکا ہے۔ اس کانفرنس کی اپنی ہی ایک سگنیفیکنس ہے اور کانفرنس کا باقاعدہ افتتاح وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے کیا تھا۔
آپ کو آگاہ کرے کہ ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹر کانفرنس 2025 اس وقت اسلام آباد میں جاری ہے۔ اس کانفرنس کے اندر اس موقع پر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ علاقائی روابط کا فروغ اجتماعی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ Distinguished guests, Main Line ML1 is the artery of Pakistan Railways, carrying out 80% of the passenger and 90% of freight operations. Its upgradation is critical, which would not only enhance the current operational capability of Pakistan Railways, but would also open new avenues for regional connectivity. The upgradation of ML2 Kotri Atak is also fundamental. The Uzbekistan-Afghanistan-Pakistan Railways Corridor, which is a transformative project connecting the seaports of Pakistan with landlocked Central Asia republics. This includes the construction of a 192-kilometer long new rail link from Kohat to Kharlachi, our border with Afghanistan. Efforts are underway to upgrade ML3 Koita Taftan, as it is essential for existing regional connectivity that connects with Pakistan Railways with Iran, Turkey and beyond through ITI freight train, which is a flagship project under Economic Cooperation Organization ECO. This would also help to facilitate connectivity between the mineral-rich Chagi region of Balochistan to the ports of Karachi. Excellency, Pakistan has also planned a main line 4 to contribute towards the development of Gwadar port by linking it with existing railway network. The Tharkol railway project is another initiative to transport coal from Thar to the ports of Karachi. This project will link Thar coal mines with ML1 inshallah soon. Moreover, another exciting project is the freight train service from Pakistan to Belarus via Iran. Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan and Russia. We will start soon inshallah ta'ala 31st of December 2025. Additional links are being explored to enhance rail connectivity with Central Asia republics. Excellencies and colleagues, the railway system of Pakistan is planned to deliver a future where connectivity is a key to development. We remain fully committed to working with our regional partners to facilitate cross-border operations and share our vision of a connected, developed and peaceful region. I would like to extend my sincere gratitude to the organizers, my brother Aleem Khan and his team, for such a wonderful conference, and I look forward to a meaningful dialogue during the conference. Thank you so much. वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी खिताब कर रहे थे। रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस 2025 से उनका ये कहना था कि पाकिस्तान रेलवे रवाबित के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ, हमारे साथ रहिएगा। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त